Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session or in this video, we're gonna discuss about the NEET PD 2023 All India Round 2 latest update. Till now, tomorrow is the last date. 22 August 2023 is the last date for All India Round 2 registration, choice filling as well as the preference locking. But till now, 21st of August till 12 p.m. the seat matrix has not been arrived, but your reset option is already available as well as the registration and payment facility is already available. So till now, if you haven't joined in your All India, you can do your fresh registration and you can proceed with the counseling. But the choice filling has not been started, and the reason is that the seat matrix event itself is not there. So what are the possibilities that whether when your seat matrix can arrive, will there be any further delay or the whole counseling process will be delayed again, like it happened in the All India Round 1, that at the time of joining the counseling was delayed for 1 day. What are the possibilities for All India Round 2? And the big rule is there that if you got the Round 1 seat and you have went for the upgradation in Round 2 and your seat is didn't got upgradation, then can you upgrade it to the Round 3? Round 1 to Round 3 upgradation is possible. So आज मैं इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाला हूँ. उससे पहले मैं बता दूँ, if you are new on this channel and if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it. As well as you can join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest updates, PDF regarding your states counseling and everything, we are continuously posting there. तो अगर आपने join नहीं किया तो join करके रखें. As well as you can follow us on Instagram. The page handle name is Admission Media. You can follow us from there, because whatever the latest update we are also posting there. So let's talk about the first thing, that choice filling and seat matrix, when it is expected to come and whether there will be any further delay in the counseling, yes or no. So the first question will be answered like that seat matrix has not been arrived till today, and most probably अगर आज late evening तक भी seat matrix नहीं आती है, in that case your round 2 of All India counseling will be delayed for either 1 day or 2 day, because टाइम बहुत लिमिटेड बचेगा. अगर लेट इवनिंग तक को भी सीट मैट्रिक्स आ जाती है, then still you have time till tomorrow. You can do your registration, you can do your choice filling and everything. But if the seat matrix is not coming today, then the counseling will be delayed by 1 day or 2 day, and a new counseling schedule will be published again, like it happened at the time of All India Round 1 reporting. So अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है. You don't need to panic at all that choice filling कैसे होगा, क्या होगा. Once the seat matrix arrive, you have almost 24 hours to do the things. So wait for them. Once the seat matrix is there, then only you can do the things. For those things, you can stay connected with the mcc.nic.in, the MCC website, as well as you can connect it with us over in Telegram channel. Once the seat matrix is there, we will be updating you that yes, choice filling has been started. But most probably chances जरूर हैं कि राउंड 2 की ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग को एक दिन के लिए एक्सटेंड और किया जाएगा, मतलब कि डिले किया जाएगा. मोस्ट प्रॉबेबली 1 और 2 डे. बट इसको लिए अगेन नई काउंसलिंग शेड्यूल आती है नहीं आती है, नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है, विल बी अ टफ थिंग टू सी, because even till now your NRI conversion list has not been published for All India Round 2. In Round 1 they again did the delay, then extended the counseling, and again for now till now the All India NRI conversion list is even not here. So most probably chances are there that counseling will be delayed again, like what it happened in the Round 1 itself. So let's see what they does once the notification is there or not. Now talk about the big rule which has been already cleared for your NEET UG 2023. This is the rule. I will be sharing the PDF in Telegram also. As per that, the big rule was there. अगर आपको पहले की रूल में बात करता हूँ, if you got a seat in All India Round 1, you went for the upgradation in All India Round 2. अगर आपको upgradation मिल जाता है, then your security amount will be forfeited. You have to, and you wish to upgrade it to Round 2, Round 3, then the possibilities were there that again after doing your fresh registration, fresh choice filling as well as the security amount paying again, and you can upgrade the seat. बट अगर राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन नहीं मिल रहा था, तो क्या राउंड 1 के सीट को आप राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते थे, ये क्वेश्चन था. एंड पहले इसका आंसर था नो, बिकॉज थिंग्स वर नॉट क्लियर एट दैट पोजीशन. यूजी के लिए एमसीसी हैज ऑलरेडी क्लियर दैट थिंग दैट यस यू कैन डू इट. मतलब कि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई, राउंड 2 में आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग किया, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिला, आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, अपग्रेड हो गई, देन इट्स गुड. अपग्रेड इवन नहीं होती है तो राउंड 3 में अगेन आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो विद द राउंड 1 सीट इन हैंड. यस, दे हैव डिड इन नीट यूजी दैट अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई,
अपग्रेडेशन के लिए आपने गया राउंड 2 में, अपग्रेड नहीं हुआ, तो राउंड 3 में क्या रूल था कि पहले आपको ये सीट रिजल्ट आने के 2 दिन पहले छोड़नी थी, फ्री एग्जिट लेके आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करके आपको राउंड 3 में जाना था. बट नाउ यू कैन पुट द राउंड 1 सीट इन योर हैंड एंड यू कैन वेंट फॉर द राउंड 3 अपग्रेडेशन. और अपग्रेडेशन के लिए विलनेस आपकी ऑटोमेटिकली येस हो जाएगी क्योंकि राउंड 2 में ऑलरेडी आपने ये किया हुआ है. एंड इफ दिस इज हैपनिंग, बिलीव मी, मेजर ऑफ द सीट्स, ऑलमोस्ट 50 to 60% सीट्स ऑलरेडी आपकी वर्चुअल वैकेंसी में ही रहेंगी. देयर वोंट बी एनी क्लियर वैकेंसी. रीजन इज दैट राउंड 1 की सीट ऑलरेडी किसी ने होल्ड कर रखी है अपने पास. दे आर गोइंग फॉर द अपग्रेडेशन इन राउंड 2. नहीं अपग्रेड हुआ, अभी वो राउंड 1 की सीट को ही लेके अपग्रेड करने पहुंच जाएंगे राउंड 3 में. राउंड 2 में अगेन मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉट होगी. जिनको अपग्रेड हो गया वो फिर से अपग्रेड करेंगे, बट पॉसिबिलिटीज कम रहेगी कि वो ज्यादा अपग्रेड के लिए जाएं. बट सीट तो होल्डिंग पे जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा. देयर इज नो क्लियर वैकेंसी, मैक्सिमम सीट्स आर इन वर्चुअल वैकेंसी इटसेल्फ. राउंड 1 में ही मैंने ऑलरेडी यस्टरडे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है दैट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस कैंडिडेट्स हैव ज्वाइंड एंड वेंट फॉर द अपग्रेडेशन. एग्जैक्टली उसमें से कितनों ने ज्वाइनिंग की है, कितने अपग्रेड के लिए गए हैं, इसकी लिस्ट या डिटेल सीट मैट्रिक्स आने के बाद आइडिया लगेगा. बट एज वी आर थिंकिंग या एज पर द एनालिसिस, मेजर सीट्स आर वेंट फॉर द अपग्रेडेशन इटसेल्फ. तो राउंड 2 में भी यही होगा. राउंड 2 में सीटें और ज्यादा लोगों के पास अलॉट होंगी. विदाउट एनी डाउट सीट्स विल बी अलॉटेड टू समवन. वो कैंडिडेट्स अगेन सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट करके राउंड 3 में अपग्रेड जाएंगे. मतलब राउंड 1 की भी सीट अपग्रेड में जा रही है, राउंड 2 की भी सीट अपग्रेड में जा रही है. तो ओवरऑल राउंड 3 में जो क्लियर वैकेंसी रहेगी दैट विल बी लिमिटेड. मीन्स जो शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हो या जो बहुत बड़े पॉजिटिव शिफ्ट की बात कर रहे हो वो डिक्रीज होगा. बिकॉज ऑलरेडी जिनके अच्छे रैंक है या जिनके मीडियम रैंक है उन्होंने ऑलरेडी एक सीट होल्ड करके रखी है आपके पास. और जो रिवाइज कट ऑफ के बाद बच्चे आएंगे, ऑफ कोर्स देयर रैंक विल बी सो फॉर बिलो व्हाट दे आर कैंडिडेट्स एक्चुअली परफॉर्मिंग इन द काउंसलिंग राइट नाउ. तो ये कैंडिडेट्स राउंड 3 तक जब अपग्रेड ही करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन गेट अ हायर क्लिनिकल ब्रांच इन राउंड 3 इटसेल्फ और इन द स्ट्रे राउंड. रिवाइज कट ऑफ आएगा because this virtual vacancy are also a vacancy, is also a seat matrix, but it's not a clear it's not a clear vacancy that exactly they will be leaving the seat at round 3. because round 3 में जाके अगेन ये सीटें अगर ड्रॉप कर देते हैं तो दे वोंट बी any problem, only increase security amount forfeit होगी. These seats will be going for the stray round, but stray round is the final round. इसके बाद स्पेशल हिस्ट्री होगा. मल्टीपल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टिल नाउ. द आंसर इज स्टिल नॉट क्लियर. इट विल टोटली डिपेंड दैट इफ सीट्स विल बी वैकेंट आफ्टर इवन द स्ट्रे राउंड, then only special history round vacancy can happen and special history round can happen. Otherwise maximum chances यही हैं कि stray round will be the final. So most probably अगर आपको मॉपअप में सीट नहीं मिलती है तो you can expect कि आपको स्ट्रे में मिल जाए. बट ड्यू टू एनी रीजन और ड्यू टू एनी वे अगर आपको स्ट्रे में सीट नहीं मिली तो 99% आप मान के चलना कि आपको ड्रॉप के लिए ही जाना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम multiple states has again a rule that if you got any allotment in your all India round 3 यानी कि मॉप अप राउंड में आपको कोई भी सीट मिल जाएगी then they will eliminate there from state counseling, that is आपको मॉप अप as well as स्ट्रे में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे. so if you are performing in your all India round 3, let's see, अभी ये रूल फाइनल नहीं हुआ है बट एज वी ऑल नो MCC what does, जो रूल वो UG के लिए रखते हैं 99% वो PG के लिए भी रखते हैं. अभी अपग्रेडेशन इन्होंने अलाउ कर दिया है राउंड 1 टू राउंड 3. सिंपल मीन्स है कॉम्पिटिशन विल बी नेक टू नेक. जो पॉजिटिव शिफ्ट की आप बातें सोच रहे हो वो भूल जाओ क्योंकि नई सीटें एड ऑन होने के चांसेस बहुत कम है. एड ऑन होती भी हैं तो मैक्स टू मैक्स 500 to 1000 सीटें ही एड ऑन होंगी और वो अगर होनी भी है तो राउंड 2 में ही होंगी, ऐसा नहीं होगा राउंड 3 में नहीं एड ऑन हो जाएंगी. तो अगर सीटें एड ऑन होंगी तब कुछ पॉजिटिव शिफ्ट की आप बात कर सकते हो. बट पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. कंपटीशन विल बी नेक टू नेक बिकॉज ऑलरेडी जितने भी रैंकर हैं या जितने मीडियम रैंकर कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ऑलरेडी एक सीट अपने पास होल्ड में रखी हुई है. अब ये अगेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द हायर क्लिनिकल ब्रांचेस और फीस विद द कॉलेज विद द फीस एट द लोअर बजट. तो यहाँ पे कंपटीशन नेक टू नेक होगा, शिफ्टिंग होगी बट मैक्स टू मैक्स 1000 to 1500 की शिफ्टिंग होगी. कॉलेज टू कॉलेज निगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा. द रीजन इज दैट क्योंकि सीटें ऑलरेडी किसी ने होल्ड पे रखी हुई हैं अपने पास एंड इट्स कंप्लीटली एज पर द अपग्रेडेशन रूल कि आप वर्चुअल वैकेंसी में डाल के उस सीट को. एंड द सेम थिंग अगेन
अगर आपने फ्री एग्जिट लिया हुआ है तो आप उस सीट को अगेन चॉइस फिलिंग कर सकते हो, एक्सेप्ट अगर आपने वर्चुअल वैकेंसी में गए हो तो जिस सीट को लेके आप अपग्रेड करने जा रहे हो वो सीट सिर्फ आपको नहीं दिखेगी, बाकी सारी सीट्स आपको विजिबल होंगी बिकॉज वो सीट ऑलरेडी आपके पास है। तो चॉइस फिलिंग में वो सीट आपके लिए नहीं आएगी, बाकी सारी सीट आप फिलअप कर सकते हो, द क्लियर वैकेंसी ऑल्सो एज वेल एज वर्चुअल वैकेंसी। बट शिफ्टिंग कॉलेज वाइज इस बार देखने को मिलेगा, ब्रांच वाइज थोड़े कम चांसेस रहेंगे, कॉलेज वाइज शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगा 110%। सीटों की जो पोजीशनिंग है, जो वर्चुअल वैकेंसी आएगी तब क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड होना है, क्या चांसेस बनेंगे आपके लिए पॉजिटिव शिफ्ट, कितनी बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट लाएगी। बट एज पर द रूल्स विच आर चेंज, ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा नेगेटिव के क्या चांसेस होंगे आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि वी आर जस्ट सेइंग कॉम्पिटिशन विल बी नेक टू नेक बिकॉज आप ऑलरेडी एक सीट को अपने पास होल्ड करके मीन्स यू आर प्लेइंग वेरी सेफ कि ऑलरेडी आपके पास एक सीट है, अगर नहीं भी मिला तो यू हैव दैट सीट टू ज्वाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन कैंडिडेट्स विल बी प्लेइंग वेरी फार, मैक्सिमम चॉइसेस की एंट्री होगी क्योंकि राउंड 2 अगेन इट्स नॉट अ फ्री एग्जिट, बट अगेन यू विल बी हैव टू प्ले बोल्ड टू गेट द बोल्ड आंसर्स एंड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। लेट्स सी क्या होता है, काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होती है, पहले सीट मैट्रिक्स आएगी तब चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद हम बताएंगे। सीट मैट्रिक्स आने के बाद एक क्लियर कट आइडिया आपको हम जरूर प्रोवाइड करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज अप टू हाउ मच पॉजिटिव शिफ्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, बट कंपटीशन नेक टू नेक होने के 110% चांसेस हैं। ब्रांच वाइज डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ऑलरेडी एनआरआई सीट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताई, 415 सीट्स अलॉटेड थी, 306 सीट्स ऑलरेडी आपकी ज्वाइन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा, स्पेशली इन द लोअर क्लिनिकल टू द मिड क्लिनिकल ब्रांचेस। हायर क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत बड़ी शिफ्ट नहीं रहेगी, रीजन ऑलरेडी उनके डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी। बाकी ब्रांचेज में शिफ्ट देखने को 110% मिलेगा आपको। कितनी शिफ्टिंग होगी, कहाँ तक जा सकती है, ये आपकी सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट इफ यू लुकिंग फॉर एनी पेड काउंसलिंग गाइडेंस और एनी पर्सनलाइज काउंसलिंग even after this revised cutoff, if you are thinking that you will be eligible, then how to proceed for it, how to get a confirmed seat as per your rank, as per your branch and as per your budget, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। For all those details you can contact me on the given number below, that is 9545955519। Thank you and thank you so much for watching this video.